Good morning, student. Uh, in the last class, we have covered topic importance of organizing, and all topic we have covered is meaning, organizing process, and importance of organizing. Today we will start with the organization structure. It is a very important and very easy topic of organization structure. Already we have discussed about this topic, like in a departmentalization we have two type of department. First is the functional and divisional, and today we talk about the organizational structure. What we have the structure of our organization, that is called the organizational structure. Let us discuss. The organization structure can be defined as the framework within which the managerial and operating tasks are performed, and it specifies the relationship between the people, work and resources. मतलब ये आपका एक रिलेशनशिप है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन किस तरह से काम करेगा उसको सेट करना, एक मैनेजर लेवल सेट करना, एक ऑपरेटिंग टास्क सेट करना, ये क्या कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अनदर मीनिंग, द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू लार्ज एक्सटेंट गिव अ शेप टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, I have already told about the span of management. Span of management means the number of subordinate to work under one superior, that is called the span of management. It creates a level of management. Here in first chapter we have already discussed about the span of management is a level of management, top level, middle level and lower level. In organizing structure we tell about the level of management, that is called the span of management. It refers to the number of subordinate that can be effectively managed by superior. अगर हमारे span of management नहीं है तो जैसे हम बोलते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड में बोले जाते हैं रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, तो आपने सबॉर्डिनेट के लिए तो इजी कर दिया कि आप एक बॉस से ऑर्डर रिसीव करो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि एक्सक्यूजेज ना देने पड़े वगैरह वगैरह. लेकिन सुपीरियर के लिए क्या किया, सुपीरियर के लिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कर दिया कि आपके सुपीरियर कितने जो है सबऑर्डिनेट्स को एट अ टाइम इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. दिस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन अ स्ट्रक्चर. मैंने अभी आपको बताया कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज टोटली रिलेटेड टू द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. Organization and organization structure provide the framework which enables the enterprises to function as an integrated unit by regulating and coordinating responsibilities of individual and department. Actually organization structure को create इसलिए किया जाता है कि आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करके, इंडिविजुअल्स हैं, डिपार्टमेंट हैं, वो कोऑर्डिनेट करके इजीली काम कर सकें और अपने गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करा सकें. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है. हियर द टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन इज functional structure and second one is divisional. When we divide our organization as a based on the function or activity, इसके नेम से ही पता लग रहा है फंक्शनल. When we divide our whole organization task based on the activity, then it will create a functional structure. And if any organization choose more than one line product, then it creates a divisional structure. Let us discuss one by one. First of all, functional structure. Grouping of jobs of a similar nature under functional and organizing these major function as a separate department and create a functional structure. All department report to coordinating head. अब क्या है, जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका और उसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ क्रिएट हो रही हैं. तब हम क्या करेंगे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर देंगे. जैसे हमने एक बना दिया परचेज डिपार्टमेंट, इट्स अ एक्टिविटी, इट्स अ फंक्शन. सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआरएम डिपार्टमेंट. अब हम ये देखते हैं, अब आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट ये देखता है कि जो सिमिलर एक्टिविटीज़ है, सेम नेचर की एक्टिविटीज़ है, उन्हें एक डिपार्टमेंट बना देना. जैसे सेलिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑल दीज आर द रिलेटेड टू वन department, that is a marketing department.
it all are depend upon each other. Okay, then like purchase department, marketing department, or HRM department, research and development department, all these are different department based on activity. So the functional structure look like that. Here the managing director, and first department is human resource, marketing, research and purchasing department. जिसमें मैंने आपको बताया कि ये फंक्शनल हो गया. इट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी और बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. अब आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, बार बार उस वर्क को रिपीट कर रहे हो, तो आगे चल के क्या हो जाता है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होता है. मीन्स जैसे मैं एक सब्जेक्ट को, स्पेसिफाइड सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ, तो एक्सपीरियंस हो जाता है, स्पेशलाइज हो गई. अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पॉइंट को कितना भी इलाबोरेट करके समझा सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन हो गई उस सब्जेक्ट में. नेक्स्ट, इट प्रमोट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट, and it help increasing managerial operation efficiency. You better know the meaning of efficiency is the use the better utilization of resources and complete task within a minimum cost, and it lead the minimal duplication of efforts which will result economies of scale. Okay, मतलब लार्ज प्रोडक्शन में अगर आप आराम से जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया है, आपके डुप्लीकेशन नहीं होगा काम का. पता चला परचेज डिपार्टमेंट में भी डिपार्टमेंट नहीं बनाया, एक पर्सन भी वही काम कर रहा है और दूसरा मतलब एक काम को 4 पर्सन कर रहे हैं और सेम रिपोर्ट आ रही है. ठीक है, तो डुप्लीकेशन क्या, और आप ह्यूमन रिसोर्स को भी वेस्ट कर रहे हो. इससे अच्छा है डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करो, उनको काम हैंड ओवर कर दो, जिससे जो है डुप्लीकेशन ना आए. ठीक है. इट मेक ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज ईजियर. अभी हमने डिस्कस किया था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंस में वैसे भी जो है एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करता है. एंड इट इंश्योर दैट द डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन. और हर आपने जो है ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट सेट किए, तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहे और अपने अपने फंक्शन पे अटेंशन दे पाएंगे. अदरवाइज नहीं तो पता चला दूसरे का काम कर रहे हैं इतने दिन से और उसका कोई भी बेनिफिट नहीं निकला. डिसएडवांटेजेस क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेस अ लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइजेस में लीड टू फंक्शनल एम्पायर. मतलब आपके डिपार्टमेंट जब डिवाइड हो जाते हैं तो सब अपने अपने डिपार्टमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश में मेन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का एम है उसे भूल जाते हैं कि मतलब हमारा अपने डिपार्टमेंट का गोल अचीव हो जाए. लेकिन ये डिसएडवांटेजेस इसीलिए है क्योंकि आप काम किसके लिए कर रहे हो, या डिपार्टमेंट आपने किससे डिवाइड कर रखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए. तो सबसे बड़ा जो है डिसएडवांटेज यही होता है कि डिपार्टमेंट वाइज जो है आपका लोग अपने काम पे एम्फेसिस करने लगते हैं. इट में लीड टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन. दूसरे डिपार्टमेंट आगे ना निकल जाए इसके लिए कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाता, और कोई अपनी मिस्टेक भी मानने को तैयार नहीं होता कि उसने कमी की क्या किसने कमी की. देन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी अराइज, ऑब्वियस सी बात है. It may lead to inflexibility in people with the same skill and knowledge base may be a develop a narrow perspective. Means inflexibility. अब जिसको जो काम आता है, एक्सपर्ट है अगर उसमें, तो वो दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करेगा या दूसरे की बात नहीं सुनेगा. तो उसी डिपार्टमेंट में अगर उसके साथ कोई काम कर रहा है तो वो अपने जो है डोमिनेंट बिहेवियर उसमें दिखाएगा. सुटेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. आपको ये देखना है कि उसमें कीवर्ड पकड़ना है. जो कीवर्ड है आपका डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी. आपको डिविजनल में भी डाइवर्सिफाइड टर्म मिलेगा, बट दैट इज नॉट मीन द डाइवर्सिफाई. यहाँ पर एक्टिविटी पे होगा, फंक्शन पे होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि आपका डाइवर्सिफाई अगर प्रोडक्ट है दैट मीन्स इज द डिविजनल स्ट्रक्चर. इट इज द मोस्ट सुटेबल व्हेन इट द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन is large and have a diversified activity and operations require a high degree of specialization. Next is the divisional structure. Divisional structure when any organization switch over the more than one line product, that it means it create a different unit in the organization and it establish the different unit in different state. That is means the divisional structure. Divisional structure, the organization structure comprises the separate business unit or division
और डिविजनल हेड बना दिए जाते हैं, वही कंट्रोल करते हैं, वही रिपोर्ट तैयार करते हैं और अपने मेन हेड ऑफिस में उसकी रिपोर्ट सेंड करते हैं. Each unit has a divisional manager responsible for performance and who has authority over the unit manpower grouped. Okay, then this type of, first of all we divide the organization on based on the product like cosmetic, garment, footwear and skincare, and another second division is based on the function. Means एक गारमेंट है तो उसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड द होल ऑर्गेनाइजेशन ऑन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एंड देन इट बेस्ड ऑन एक्टिविटी. ओके, एडवांटेजेस: हेल्प इन अ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, हेल्प इन अ फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, इट फैसिलिटेट expansion and growth as a new division can be added without interrupting the existing operations. Last disadvantages क्या होते हैं आपके? Conflicts may arise among different division. It may lead to increase the cost since there may be a duplication of activities across the product and may ignore the organizational structure. मतलब organization structure को ignore किया जाता है या इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है, जिससे आपके जो है मेन जो है हेड ऑफिस का जो भी मोटिव है या एम है वो अचीव नहीं हो पाता है. सुटेबिलिटी क्या है? डिवीजन स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर दोज बिजनेस एंटरप्राइजेस वेयर द लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट. ऑब्वियस सी बात है, जब डाइवर्सिफाई करेंगे आप, मोर देन वन लाइन प्रोडक्ट चूज करेंगे तो आपके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके डिवीजन स्ट्रक्चर सुटेबल होता है. प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. Okay, that's all for the today, and in the next class we will discuss about the formal and informal organization structure.